نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی فریزہ کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چاندنی اور فریزہ یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نوبل سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ چاندنی سلطان کے جل میں پھنس جائے۔ ایسے میں نوبل پوچھتا ہے کہ سلطان میں ایسا ہے کیا جو لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے، جس پر فریزہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے دوسروں کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتا ہے، بس جو ہے وہی ہے، اور جو بھی اس کا بات نہیں مانتا اس کو ڈیگریڈ کر کے اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو جواب میں نوبل بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے مس فریزہ، مجھے سلطان کے گھٹیا ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جہاں تک رہی بات چاندنی کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے تھامنے کے لیے ہم ہے نا۔ دوسری طرف اسرا بھی مشعل کی باتیں مان کر اپنی زندگی جینا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے پسند کے کپڑے خریدتی ہے اور اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ماں اور باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمارا اسرا۔ یہاں پر اسرا کی والدہ بھی خوشی سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے، الحمدللہ اب یہ زندگی اس کے روح میں بھی اتر جائے گی۔ جب سلطان کو اگنور کر رہی ہے اسرا اور سلطان بھی جس طرح اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی فریزہ کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چاندنی اور فریزہ یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نوبل سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ چاندنی سلطان کے جل میں پھنس جائے۔ ایسے میں نوبل پوچھتا ہے کہ سلطان میں ایسا ہے کیا جو لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے، جس پر فریزہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے دوسروں کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتا ہے، بس جو ہے وہی ہے، اور جو بھی اس کا بات نہیں مانتا اس کو ڈیگریڈ کر کے اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو جواب میں نوبل بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے مس فریزہ، مجھے سلطان کے گھٹیا ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جہاں تک رہی بات چاندنی کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے تھامنے کے لیے ہم ہے نا۔ دوسری طرف اسرا بھی مشعل کی باتیں مان کر اپنی زندگی جینا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے پسند کے کپڑے خریدتی ہے اور اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ماں اور باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمارا اسرا۔ یہاں پر اسرا کی والدہ بھی خوشی سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے، الحمدللہ اب یہ زندگی اس کے روح میں بھی اتر جائے گی۔ جب سلطان کو اگنور کر رہی ہے اسرا اور سلطان بھی جس طرح اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی فریزہ کا بدلہ لینے کے لیے وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چاندنی اور فریزہ یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نوبل سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ چاندنی سلطان کے جل میں پھنس جائے۔ ایسے میں نوبل پوچھتا ہے کہ سلطان میں ایسا ہے کیا جو لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے، جس پر فریزہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے دوسروں کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتا ہے، بس جو ہے وہی ہے، اور جو بھی اس کا بات نہیں مانتا اس کو ڈیگریڈ کر کے اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو جواب میں نوبل بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے مس فریزہ، مجھے سلطان کے گھٹیا ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جہاں تک رہی بات چاندنی کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے تھامنے کے لیے ہم ہے نا۔ دوسری طرف اسرا بھی مشعل کی باتیں مان کر اپنی زندگی جینا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے پسند کے کپڑے خریدتی ہے اور اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ماں اور باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمارا اسرا۔ یہاں پر اسرا کی والدہ بھی خوشی سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے، الحمدللہ اب یہ زندگی اس کے روح میں بھی اتر جائے گی۔ جب سلطان کو اگنور کر رہی ہے اسرا اور سلطان بھی جس طرح اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی
यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नौफिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नौफिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा, और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा, और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा, और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी
यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नौफिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नौफिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है वही है और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है वही है और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है वही है और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी
यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नौफिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नौफिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजा बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजा, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा, और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नौफिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नौफिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नौफिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजा बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजा, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा, और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नौफिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नौफिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नौफिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजा बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफिल भी कहते हैं कि देखिए मिस फरीजा, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की, तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा, और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है, वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नौफिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ, यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनिया और फरीजा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नौफिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नौफिल पूछता है कि
कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर परिजीत बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परिजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी की आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर परिजी बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परिजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी की आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर परिजी बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परिजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी की आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर परिजी बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है। और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके
اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو جواب میں نوفل بھی کہتا ہے کہ دیکھیے مس پریزے، مجھے سلطان کے گھٹیا ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جہاں تک رہی بات چاندنی کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے تھامنے کے لیے ہم ہے نا۔ دوسری طرف اسرا بھی مشعل کی باتیں مان کر اپنی زندگی جینا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے پسند کے کپڑے خریدتی ہے اور اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ماں اور باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمارا اسرا۔ یہاں پر اسرا کی والدہ بھی خوشی سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے، الحمدللہ اب یہ زندگی اس کے روح میں بھی اتر جائے گی۔ جب سلطان کو اگنور کر رہی ہے اسرا، اور سلطان بھی جس طرح اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی فریزہ کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چاندنی اور فریزے یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نوبل سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا، اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ چاندنی سلطان کے جل میں پھنس جائے۔ ایسے میں نوبل پوچھتا ہے کہ سلطان میں ایسا ہے کیا جو لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے؟ جس پر فریزی بتاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے دوسروں کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتا ہے، بس جو ہے وہی ہے، اور جو بھی اس کا بات نہیں مانتا اس کو ڈیگریڈ کر کے اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو جواب میں نوفل بھی کہتا ہے کہ دیکھیے مس پریزے، مجھے سلطان کے گھٹیا ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جہاں تک رہی بات چاندنی کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے تھامنے کے لیے ہم ہے نا۔ دوسری طرف اسرا بھی مشعل کی باتیں مان کر اپنی زندگی جینا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے پسند کے کپڑے خریدتی ہے اور اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ماں اور باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمارا اسرا۔ یہاں پر اسرا کی والدہ بھی خوشی سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے، الحمدللہ اب یہ زندگی اس کے روح میں بھی اتر جائے گی۔ جب سلطان کو اگنور کر رہی ہے اسرا، اور سلطان بھی جس طرح اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی فریزہ کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چاندنی اور فریزے یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نوبل سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا، اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ چاندنی سلطان کے جل میں پھنس جائے۔ ایسے میں نوبل پوچھتا ہے کہ سلطان میں ایسا ہے کیا جو لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے؟ جس پر فریزی بتاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے دوسروں کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتا ہے، بس جو ہے وہی ہے، اور جو بھی اس کا بات نہیں مانتا اس کو ڈیگریڈ کر کے اپنی بات منوا کر ہی چھوڑتا ہے۔ تو جواب میں نوفل بھی کہتا ہے کہ دیکھیے مس پریزے، مجھے سلطان کے گھٹیا ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور جہاں تک رہی بات چاندنی کی تو اسے ایک لمحے کے لیے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اسے تھامنے کے لیے ہم ہے نا۔ دوسری طرف اسرا بھی مشعل کی باتیں مان کر اپنی زندگی جینا شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے پسند کے کپڑے خریدتی ہے اور اپنی امی کی طرف بھی جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر ماں اور باپ بھی بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو جادو ہو گیا، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے ہمارا اسرا۔ یہاں پر اسرا کی والدہ بھی خوشی سے کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میرے بیٹے کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آئے، الحمدللہ اب یہ زندگی اس کے روح میں بھی اتر جائے گی۔ جب سلطان کو اگنور کر رہی ہے اسرا، اور سلطان بھی جس طرح اپنا انسلٹ محسوس کر رہا ہے وہ دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوبل جو کچھ کر رہا ہے سلطان کے ساتھ یعنی فریزہ کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ چاندنی اور فریزے یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ وہ نوبل سے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا، اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ چاندنی سلطان کے جل میں پھنس جائے۔ ایسے میں نوبل پوچھتا ہے کہ سلطان میں ایسا ہے کیا جو لڑکی اتنی جلدی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے؟ جس پر فریزی بتاتی ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے دوسروں کے ذہن میں انجیکٹ کر دیتا ہے، بس جو ہے وہی ہے، اور
जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी की आसार नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है वही है, और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी की आसार नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है वही है, और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी की आसार नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है। बस जो है वही है, और
जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो कुछ कर रहा है सुल्तान के साथ यानी फरीजा का बदला लेने के लिए वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चांदनी और फरीजे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो नोबिल से कहते हैं कि यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चांदनी सुल्तान के जल में फंस जाए। ऐसे में नोबिल पूछता है कि सुल्तान में ऐसा है क्या जो लड़की इतनी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर फरीजे बताती है कि वो अपनी तारीफें कर करके दूसरों के जहन में इंजेक्ट कर देता है, बस जो है वही है, और जो भी इसका बात नहीं मानता उसको डिग्रेड करके अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। तो जवाब में नौफल भी कहते हैं कि देखिए मिस परीजे, मुझे सुल्तान के घटिया होने पर कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात चांदनी की तो उसे एक लम्हे के लिए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसे थामने के लिए हम है ना। दूसरी तरफ असरा भी मशल की बातें मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू हो चुकी है। वो अपने पसंद के कपड़े खरीदती है और अपनी अम्मी की तरफ भी जाती है। इसे देखकर मावर भाभी बहुत ही ज्यादा खुश है। वो कहती है कि ये तो जादू हो गया, देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारा इसरा। यहाँ पर इसरा की वालिदा भी खुशी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे बेटे के चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिंदगी इसके रूह में भी उतर जाएगी। जब सुल्तान को इग्नोर कर रही है असरा और सुल्तान भी जिस तरह अपना इंसल्ट महसूस कर रहा है वो देखकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ नोबिल जो